Good morning, students. I hope you have done the reading of page number 2, page number 26 and 27 of Anansi and 5, and also learn the difficult words. Now we start from the last paragraph of the page number 27. Are you ready? Not long after, he heard little footsteps on the path and looked up. ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि इसने रास्ते पर छोटे छोटे कदमों की चाप सुनी and looked up और निगाह की. It was Mr. Duck. ये बतख साहिब थे. You can see here. Look at the picture. It was duck. He walked along with his chest held high and his feet made a slap sound on the path. वो सीना ताने चले आ रहे थे और इनके पैर रास्ते पर थपड़ थपड़ की आवाज पैदा कर रहे थे. He had a bag with his lunch in it by his side. उन्होंने अपने दोपहर के खाने पर मुश्तमिल एक थैला पहलू में लटका रखा था. Mr. Duck stopped when he saw Anansi and asked him how he was. जब बतख साहिब ने नैन्सी को देखा तो रुक गए और इसका हाल दरियाफ्त किया. Anansi put, now turn the page of 28. On a glum expression. Anansi ने चेहरे पे उदासी तारी कर ली. Underline the word. Expression. Mr. Duck, I have no idea how to count my young plants. बतख साहिब, मुझे अपने कचालू के पौधे गिनने का बिल्कुल तरीका नहीं आता. Can you help me please? क्या मेरी मदद कर सकते हैं? Mr. Duck bobbed his head. बतख साहिब ने अपना सर हिलाया. Bobbed. And puffed out his chest even further. और अपने सीना मजीद फुला लिया. And puffed out his chest even further. और अपने सीना को मजीद फुला लिया. Well, Anansi, he said, it is quite simple. उन्होंने कहा, बड़ी सादा सी बात है. Start with 1, एक से शुरू करो. Then it's 2, 3, 4 and 5. फिर आते हैं 2, 3, 4 और 5. Mr. Duck disappeared. बतख साहब फौरन गायब हो गए. Instantly. फौरन. Instantly. Mr. Duck disappeared instantly. फौरन गायब हो गए बतख साहिब. Anansi ate up the lunch.
नैन्सी ने दोपहर का खाना खा लिया। Now, next paragraph. Now, I know you will be wondering about Anansi's family. अब मुझे मालूम हुआ कि आप नैन्सी के घर वालों के बारे में सोच रहे होंगे। Did he think about them? क्या इसने इनके बारे में सोचा? Did he save any food for them? क्या इसने इनके लिए कुछ खाना बचाया? See? No, नहीं. He didn't. इसने ऐसा नहीं किया. He ate everything without a thought about any of them. इसने ऐसा नहीं किया. इसने इनमें से किसी एक के बारे में एक बार भी सोचे बगैर हर चीज खा ली. Next to come along on her way to the market to buy some tasty treats was Miss Frog. इसके बाद मिस मैंडकी आई जो खाने पीने की मज़ेदार चीज़ें खरीदने मंडी जा रही थीं. She did not stop when Anansi called after her. जब नैन्सी ने पीछे से आवाज लगाई वो नहीं रुकी. Hey, please help me count my plants. पौधे गिनने में मेरी मदद करो. बराए मेहरबानी पौधे गिनने में मेरी मदद करो. She laughed. वो हंसती. No way. कोई चक्कर नहीं. Count them by yourself. इन्हें खुद गिनो. She called over her shoulder as she hopped away. उन्होंने फुदक कर दूर निकलते हुए मुड़कर कहा. Hopped, फुदक कर. Underline the word. Next paragraph. He did not bother Anansi too much because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out. क्योंकि वो जानता था कि अपना चक्कर चलाने के उसे और भी बहुत से मौके He imagined what delicious foods he would find. इसने तसव्वुर किया कि इसे कौन-कौन से मज़ेदार खाने मिलेंगे. He did not imagine taking any to his hungry children. इसने इनमें से किसी को भी अपने भूखे बच्चों के पास ले जाने के बारे में नहीं सोचा. He was going to eat as much as he could fit in his stomach and then go back and try the trick again on another day. इसके पेट में जितना समा सकता था वो इतना खाना चाहता था और फिर किसी और दिन वापस आकर यही चक्कर आजमाना चाहता था. A skewering sound pulled Anansi out of his daydream.
तेज तेज कदमों की आवाज ने अनैंसी को इसकी खुली आंखों के ख्वाब से बाहर खींच लिया। इट वॉज मिस्टर श्रू। ये बेगम श्रू थीं। ऑन हर टाइनी बैक शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाई that she was hoping to sell. अपनी नन्ही सी कमर पर उन्होंने ताज़ा बनी हुई कचौरियों का बड़ा सा बोझ उठा रखा था, जिन्हें वो फरोख्त करने की उम्मीद लगाए हुए थीं। Underline the word skewering. The load was 3 times her size and her face was red from the effort she was making. बोझ इनकी जिसामत से 3 गुना ज्यादा था और उन्हें जो कोशिश करना पड़ रही थी इसकी वजह से इनका चेहरा सुर्ख, Her face was red. चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओ लेडी श्रू, ओ मोहतरमा श्रू, हाउ नाइस टू सी यू। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सिट अ वाइल एंड रेस्ट। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और आराम कीजिए। आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स। मुझे अपने पौधे गिनने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी। और आप अपनी दानिश मेरे साथ बांट सकती हैं। विजडम, अक्लमंदी। Anansi grinned and showed all his sharp teeth. अनंसी मुस्कुराया और अपने तेज धार दांतों की नुमाइश की। He was trying hard to be charming. वो दिल मोह लेने की भरपूर कोशिश कर रहा था। Because he really wanted to eat all the pies. क्योंकि वह बड़ी शिद्दत से तमाम कचौरियाँ खाना चाहता था। पाइज जो होते हैं वो केक को भी हम जो होते हैं वो इसको कहते हैं। मिस्टर श्रू वॉज नॉट अ फूल। बेगम श्रू बेवकूफ़ ना थी। शी कुड सी अनैंसीज आईज ग्लिस्टर्न एज ही लुक्ड एट द पाइज। वो कचौरियों पर नज़र डालकर नैन्सी की आंखों को चमकता हुआ देख सकती थी। ग्लिस्टन में चमकता हुआ। वेल अनैंसी, यू आर काइंड। अनैंसी, तुम मेहरबान और रहमदिल हो। आई एम टाइड। मैं थकी हुई हूँ। She put down her load. उन्होंने अपना बोझ नीचे रख दिया। How could I help? मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? You can see here Anansi and Mrs. श्रू बेगम श्रू जो हैं उन्होंने अपने पाए जो हैं वो यहाँ पे रखी। And you can see the picture. I can't count. He lied. मैं गिनती नहीं कर सकता, इसने झूठ बोला। Can you count my young mounds for me? क्या मेरे कचालू के ढेर मेरे लिए गिन सकती हैं?
Mrs. Shrew smiled. बेगम श्रू मुस्कुराई. She walked to the nearest mound. वो नज़दीक तरीन ढेर के पास पहुंची. And stood on it. इस पर खड़ी हो गई. She pointed to the mound that was furthest away from her. 1, 2, 3, 4 and this one. उन्होंने सबसे दूर पड़े ढेर की तरफ इशारा किया. 1, 2, 3, 4 और ये वाला. She said clearly. उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा. Anansi frowned. अनैंसी ने माथे पे बल डाले. Do it again. दोबारा कीजिए. Say all the numbers. तमाम अदाद बोलिए. He said. इसने कहा. 1, 2, 3, 4 and this one. 1, 2, 3, 4 and this one that I am sitting on. और ये जिस पर मैं बैठी हुई हूँ. Mrs. Shrew spoke slowly and clearly. बेगम श्रू ने आहिस्ता आहिस्ता और वाज़ेह अंदाज में कहा. A flash of anger passed over Anansi's face. अनैंसी के चेहरे पर गुस्सा चमका. फ्लैश चमका. Come on. चलिए बी. Say them properly. उन्हें ठीक तरह से कहिए. He was finding it difficult to keep a smile on his face. उसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखने में दुश्वारी महसूस हो रही थी. Again, दोबारा. Mrs. Shrew smiled sweetly and counted slowly. 1, 2, 3, 4 and this one here. एक बार फिर बेगम श्रू बड़े प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराई और आहिस्ता आहिस्ता गिनती की. 1, 2, 3, 4 और ये वाला. She pointed to the mound beneath her feet. उन्होंने अपने कदमों के नीचे मौजूद ढेर की तरफ इशारा किया. कहिए. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Shouted Nancy. नैन्सी चिल्लाया. Instantly, यकायक. In a big burst of sparks, he disappeared. यकायक चिंगारियों के एक झमाके के साथ वो गायब हो गया. Mrs. Shrew picked up her load and set off to the market. बेगम श्रू ने अपना बोझ उठाया और मंडी की तरफ चल दी. She would sell these pies and buy mouth-watering delicious for her family. वे इन कचौरियों को बेचने और अपने घर वालों के लिए मुंह में पानी लाने वाले मज़ेदार पकवान खरीदने वाली थी. Now underline the difficult words. Beneath, instantly, delicious, and front. All the difficult words you will learn and also read the whole chapter. Thank you.